Hello students, welcome to our English language class. In today's lecture, I am going to explain you our poem number 2, that is the books written by the Eleanor Version. Okay, let's start this poem. The poem Books. This poem is divided into 4 stanzas. I will explain you one by one. This poem is all about the books that we read. Okay? So, first stanza. What worlds of wonder are our books as one opens them and looks. New ideas and people rise in our fancies and our eyes. Here, the word fancy means something that we imagine. Okay, in first stanza, the poet wants to say that the joy and wonder of books. It describes how books lead readers to encounter new ideas and people. This means that when we read a book and when we are in that book, we read something and we imagine that really that is going on. That book takes us to the imaginations, the new world of imagination, okay, and gives us new ideas. Books contain wonderful information about other parts of the world. As we read them or look at the pictures, we are carried away in our imagination to the new lands with different people who give us new ideas about the world. Here in first stanza, poet हमसे ये कह रहा है कि when we are reading something in the books, that book will take us to the world of imagination. एक अलग ही दुनिया में हमको लेके जाती है जहाँ से हम डिफरेंट पीपल से मिलते हैं और हमें न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं. ओके, लेट्स सी इन द सेकेंड स्टांजा. The room we sit in melts away and we find ourselves at play with someone who, before the end, may become our chosen friend. In the second stanza, the poet tries to explain that while we are engrossed in reading books, जब हम बुक रीड करते करते उस बुक में खो जाते हैं, the real world seems to fade away. The real world seems to fade away. हमें वो एकदम इतना रियल लगता है कि हम रियल दुनिया को छोड़ के एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हम लोग चले जाते हैं और वो हमें रियल लगता है. We may reading in our bedroom, but while reading we find ourselves in the some world of fantasy. भले हम अपने रूम में बैठ के रीड कर रहे हैं, अपने बेडरूम में बैठ के हम लोग बुक रीड कर रहे हैं, बट जब हम लोग रीड एकदम फोकस के साथ कर रहे हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जो हम बुक में रीड कर रहे हैं मैं मेंटली वहीं पे हूँ, फिजिकली भी मैं वहीं पे हूँ, इन द वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ इमेजिनेशन. ओके, and we often become friends with the character in a story book. Yeah, it's true कि हम जब भी स्टोरी बुक रीड करते हैं तो जो उसमें जो भी हमें कैरेक्टर दिखाया गया है कि ये कैरेक्टर है, वो मतलब कोई भी इंसान के बारे में हम लोग रीड कर रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है ना. जब भी हम बुक रीड करते हैं कोई भी, तो उसमें किसी की भी बात हो तो हम इंटरेस्ट के साथ अगर देखते हैं तो हमें यही लगता है कि हाँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, है ना. चलो, नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा. Or we sail along the page to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is over there. Yes, what the poet says in the third stanza, let's see. The poet is explaining that as we move along with the chapter,
जैसे जैसे हम स्टोरी रीड करते हैं और उसमें स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, वी ऑफन विजिट टू अ डिफरेंट प्लेस। हम जनरली वो स्टोरी सपोज इधर फेरी लैंड की है तो हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं, एलिस इन द वंडरलैंड की है तो हमारे सामने वो पूरा वंडरलैंड हम लोग इमेजिन करते हैं। तो जो भी हम लोग स्टोरीज देख रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, हम उसी दुनिया में चले जाते हैं, है ना। लाइक हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन, वन कैन विजिट टू अ फेरी लैंड इफ ही और शी इज रीडिंग द स्टोरी बुक ऑफ द फेरी लैंड, तब वो इमेजिन क्या करेंगे, फेरी लैंड, मेंटली वो वहाँ पे होंगे। सिमिलरली वन कैन विजिट टू द एज ऑफ डायनासोर्स, कोई डायनासोर्स की बुक रीड कर रहा है तो वो वर्ल्ड को इमेजिन करेगा कि डायनासोर्स होते हैं तो कैसी लाइफ होती थी। ओके, सो आवर बॉडी में बी इन द चेयर, हम भले फिजिकली चेयर पे बैठे हो बट mentally we are not there mentally, but our mind is in the fantasy world. Fantasy means the imagination, the imaginating world created by the book. That imagination of imaginated world is not created by us, it is created by the books because we all are reading that book. Okay, now next. In fourth stanza, each book is a magic box which with a touch a child unlocks. In between their outside covers, books hold all things for their loves. What do the poet says in the fourth stanza? Let's see. The poet in the fourth stanza talks about the experience of reading and how it opens up new worlds. क्या पोएट बोल रहे हैं फोर्थ स्टांजा में कि जब जब आप कोई बुक्स रीड करोगे उससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और जैसे वो बुक में जो लिखा होगा आप उसके वर्ड, इमेजिनेटिंग वर्ड वो इमेजिन करके उसमें खो जाओगे। एंड जिससे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा रीडिंग का, इट विल ओपन्स अप अ न्यू वर्ल्ड। द पोएट स्टेट्स दैट ईच बुक इज लाइक अ मैजिक बॉक्स, क्योंकि मैजिक बॉक्स में तो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट ही निकलेंगे कि इससे क्या होगा, इससे कुछ नया ही होगा। वैसे ही हर स्टोरी बुक, हर बुक में से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमें एक न्यू वर्ल्ड की ओर लेके जाएगी, न्यू थॉट्स मिलेंगे। Okay, so a poet states that each book is like a magic box that a child opens to find everything they love to see in the world of their imagination. मैजिक बॉक्स में से क्या मिलेगा, जो मुझे चाहिए होगा एज अ चाइल्ड, मुझे जो चाहिए होगा वही वो सब मैं मैजिक बॉक्स में से फाइंड करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद है। ओके, वो मुझे जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो वर्ल्ड मुझे इतना पसंद है कि मैं जो चाहूँ वो मैजिक बॉक्स में से निकाल सकता हूँ। ओके, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर बुक लवर्स एंड दे कैन चूज द बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जिस हिसाब से मैं बुक रीडिंग करती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किस टाइप की बुक्स रीड करना अच्छा लगता है। इट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड। ओके, दिस वॉज योर पोयम नंबर 2, बुक्स। ओके, बाय, थैंक यू।